फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ पेंटिंग्स के बारे में। और पेंटिंग में मेन पेंटिंग क्या है? पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि है अजंता के केव नंबर 1 में। बहुत ही फेमस पेंटिंग है, बहुत जगह पे आप इसके बारे में सुने भी होंगे। ये क्लास के लिए रेफरेंस के लिए मैंने लिया है NCERT का हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट 1 का बुक। और इसको हम पढ़ रहे हैं MCQ के तौर पे, लाइन बाय लाइन विथ फुल डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1। अजंता के केव नंबर 1 पे ये वाला पेंटिंग है पद्मपाणि बोधिसत्व। ओके, जहाँ पे एक बोधिसत्व का इमेज दिया गया है जो कि पद्म या फिर लोटस पकड़ के खड़े हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस पेंटिंग इज ऑन द बैक वॉल ऑफ द इंटीरियर हॉल बिफोर द श्राइन and chamber in the cave number 1 at Ajanta. Dates back late 15th century BCE. The Bodhisattva is holding a Padma, so that the name is पद्मपाणि बोधिसत्व। यहाँ पे भी एक पेंटिंग का इमेज है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। और मेनली पद्मपाणि बोधिसत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि ऊपर है। ओके, has the large shoulders and have 3 bends body creating the movement of the picture space। जैसे हम त्रिभंग के बारे में इससे पहले भी पढ़े हुए थे, तो वो 3 बेंड यहाँ पे भी मौजूद है। Outlines are merged with the body volume creating an effect of 3 dimensionality। जो आउटलाइन है वो बॉडी के साथ मर्ज किया हुआ है, so that ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है। The figure of the Bodhisattva is wearing a big crown in which details rendering is visible। जो बहुत बड़े जो मुकुट पहने हुए हैं, मुकुट में भी वो डिटेल्स दिख रहा है। The figure of the Bodhisattva, the head is slightly bent to left, head थोड़ा bent लेफ्ट को bent हुआ है। Eyes are half closed and slightly elongated, थोड़ा लंबा जैसा बनाया गया है। Nose is sharp and straight, light color all over the projected planes of the face aim at creating effect of 3 dimensionality। The bearded necklace mainly features हैं। फीचर्स को आप एक बार थोड़ा देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, now the beaded necklace has 2 similar features. Broad and expanded shoulders create heaviness in the body. The torso is relatively round, lines are delicate, rhythmic, define the contours of the body. The right hand is holding a lotus। right hand में एक लोटस पकड़ा हुआ है, left hand extended in the space। तो मेनली इसमें मैं लाइंस इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। These are the features। ये फीचर्स थोड़ा सा इट्स नॉट लाइक MCQ, बट स्टिल आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। लेकिन जो रेड मार्क है वो डेफिनेटली एक MCQ है। Okay, the foreshortened right hand of the Bodhisattva makes the image more solid, the appearance dense. The thread over the torso has with the fine spiral lines indicating dimension. Each and every part of the body is given equal attention. Light red, brown, green and blue colors are used। ये सारे colors use हुए हैं। Nose projections inside end of the lips, lower lip projection and the composition, the painting in cave number 1 are of good quality and are better preserved। One can observe certain typological and stylistic variation of the painting of Ajanta, indicating different guilds of artisan working the cave painting of Ajanta over the centuries। On the other side, the image of Vajrapani Bodhisattva have been painted। He holds a Vajra, दूसरी साइड में वज्र पकड़े हुए हैं। Right, wears a crown। This image is also bear the same pictorial quality as the Padmapani cave number 1। Many interesting painting of Buddhist theme as ये पेंटिंग है महाजनक जातक का, जो हम देख रहे हैं। महाजनक जातक, उमंग जातक etc painted on the entire wall side and the biggest narrative of the painting। It may be observed that the painting of Padmapani Vajrapani are the Bodhisattvas are the painted shrine guardians। ये दोनों साइड में है, तो लग रहा है कि ये गार्डियन के बारे में इनका पेंट किया गया है। However, Padmapani Vajrapani in the cave number 1 are the among the best survive painting of Ajanta। अजंता में जो पेंटिंग सबसे अच्छे से सर्वाइव हो गए, उनमें से ये ही थे। Now there is a sculpture called मोरा विजय, जो कि अजंता के केव नंबर 26 में है। ओके, ना ये आप इसमें एक बार देख लीजिए। बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक पिक्टोरियल सीन चल रहा है, ऊपर भी एक पिक्टोरियल सीन चल रहा है। इसके बारे में देखते हैं।
The theme of the Mora Vijay has painted in the caves of Ajanta. This is the only sculptural representation sculpted on the right wall of cave number 26. Cave number 26 में ये एक ही sculptural representation है. It is sculpted near the colossal Buddha image of Mahaparinirvana. The panel shows the image of the Buddha center surrounding the Mora's army along with his daughter. Mora नाम का जो एक राक्षस है उसका पूरा आर्मी वहां पे है उसके डॉटर के साथ या फिर उसके बेटी के साथ. द इवेंट इज द पार्ट ऑफ द एनलाइटमेंट. ये इवेंट एक एनलाइटमेंट का पार्ट के हिसाब से लिया गया है. इट इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द कमोशन ऑफ माइंड व्हिच इज बुद्धा वेंट थ्रू एट द टाइम ऑफ एनलाइटमेंट. मोरा रिप्रेजेंट्स डिजायर. मोरा जो है वो डिजायर की जो क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव देयर इज ए डायलॉग बिटवीन बुद्धा एंड मोरा एंड द बुद्धा इज शोन विथ हिज राइट हैंड इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द अर्थ. ऐसे करके आप ऊपर देखेंगे ऐसे अर्थ की तरफ दिखा रहे हैं. एज ए विटनेस टू हिज जेन्युइनिटी द रिलीफ स्कल्पचरल पैनल इज हाईली एनिमेटेड एंड शोज वेरी नेचुरल स्कल्पचरल स्टाइल्स ऑफ अजंता. यहाँ पे जो भी है ये बहुत ही एनिमेटेड है या मतलब इसमें बहुत ही जो मूवमेंट का बहुत सारा सीन्स का डिपिक्शन किया गया है. The composition is very complex and with high voluminous image, the complex arrangement of the picture space is highly dynamic and generates considerable movement. The figure of the right shows Mora coming with his army consisting various kind of people including some grotesque animal faces. कुछ गुस्सा हुआ animal faces भी उसमें बने हुए हैं. The dancing of the people, including some of the grotesque faces, dancing of the figure, the lower base musician have bulging figures, lower base of the musician waist, one of the dancing figures expanded her hand and dancing posture with angular frontal look. The lower end, the image of Mora shown the completely how disturbed Siddhartha. नीचे कुछ डांसर्स का भी इमेज दिया गया है जो कि लोअर बेस से बना है जहाँ पे बल्ज वेस्ट है. ये दिखाई दे रहा है कि उनको कैसे सिद्धार्थ या फिर बुद्ध को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं उसके बारे में. ओके, हाउ टू डिस्टर्ब सिद्धार्थ इन द नेम ऑफ बुद्ध बिफोर द एनलाइटमेंट. द army of Mora is showing marching towards the Buddha in the first hall panel, whereas the lower half panel shows the Mora giving the adoration. Centrally placed Buddha is in Padmasana mudra में बुद्धा बैठे हुए हैं. Tree at the back, पीछे एक ट्री बना हुआ है. Some of the facial features of the Mora army has tracked pictures of the sculptures from Vidarbha. विदर्भ के कुछ पिक्चर्स का कुछ फीचर्स भी इसमें आके मिक्स हो रहा है. The artisan at Ajanta worked in the guilds and their stylish affiliations can be traced by the identifying such stylish features. This is the largest sculptural panel at Ajanta, though there are several big images in the caves of Ajanta and located in the shrine, antechamber as well as the facade of the walls. Such a complex arrangement of figure is unique. In the other hand, painted panel exhibit such as complexity in their arrangement. A similar kind of arrangement of dancing figures in a panel is also observed at औरंगाबाद केव. औरंगाबाद केव्स में भी ऐसे सिमिलर टाइप का एक स्कल्पचर देखने को मिलता है. इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं. या महेश मूर्ति एलिफेंटा. द इमेज ऑफ महेश मूर्ति या फिर जिसको हम त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, ये जो इमेज है त्रिमूर्ति या फिर ये जो इमेज है त्रिमूर्ति जिसको हम बोलते हैं जो कि एलिफेंटा में है. द इमेज ऑफ महेश मूर्ति एट एलिफेंटा डेट्स बैक टू अर्ली 6th century CE. इट इज लोकेटेड मेन केव श्राइन. द ट्रेडिशन वेस्टर्न डेक्कन स्कल्पटिंग. डेक्कन स्कल्पटिंग का ट्रेडिशन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव अचीवमेंट ऑफ द स्कल्पटिंग इमेज इन द रॉक कट केव्स. The image is large in size, बहुत बड़ा साइज में बना हुआ है. The central head of the main Shiva figures, where the two visible heads are Bhairava and Uma. सेंट्रल में यहाँ पे शिव बने हुए हैं, यहाँ पे उमा और यहाँ पे भैरव. भैरव है शिव जी का एक गुस्सा वाला रूप और उमा पार्वती का नाम है. The central face is highly relieved, having round face, thick lips, heavy eyelids. The lower lip is prominently protruded, showing a very different characteristics. The all-inclusive aspects of Shiva is exhibited in the sculpture by soft modeling. Soft modeling से इसको ठीक से बनाया गया है. Smooth surface of the last surface of Shiva Bhairava is clearly shown. Profile in anger
विथ बल्जिंग आई एंड मस्टाच, क्योंकि मूंछ और बड़े बड़े आंखों के साथ उनको भैरव रूप या फिर डरावना रूप करके, गुस्से वाला रूप करके दिखाया गया है। द अदर फेस शोइंग फेमिनाइन कैरेक्टर इज उमा, शिवा का जो फेमिनाइन कैरेक्टर है या पार्वती है उनके बारे में बताया जा रहा है। वन ऑफ द शिल्प टेक्स्ट मेंशंस 5 इंटीग्रेटेड फेस ऑफ शिव इन दिस इमेज, इस इमेज में 5 शिव का जो इमेज उसके बारे में कुछ शिल्प टेक्स्ट में बताया गया है। शिल्प टेक्स्ट क्या है, जहाँ पे स्कल्पचर्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है। Despite being shown only 3 faces, it is considered as same variety and top at the back faces deemed as invisible, और पीछे साइड से और 2 फेस होंगे जो इनविजिबल है, इसलिए ऐसे बताया जा रहा है। This sculptures has been sculpted on the south wall of the cave along with the sculpture of अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वरी का जो स्कल्पचर है वो भी यहाँ पे है एट द गंगाधर पैनल, गंगाधर पैनल में अर्धनारीश्वर है। एलिफेंटा स्कल्पचर्स आर नोन एज द रिमार्केबल क्वालिटीज ऑफ सरफेस स्मूथनेस, एलोंगेशन एंड रिदमिक movement. Their composition is very complex. The iconographic arrangement of the cave replicated in cave number 19 एलोरा, ऐसे ही अरेंजमेंट एलोरा के cave number 19 में भी है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके ईज के लिए एक नोट बनाया हुआ है, आप ये नोट को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग जो पोस्ट मोरियन है उसको खत्म कर दिए हैं, दूसरे क्लास में हम कुछ दूसरा पढ़ने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।